Unacademy. Let's crack it. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Audible? Yes, sir, audible. Sir, Yeah, just brief give it. me a. Sorry, sir. Yes. Sir, जी the आप AC is not working. It might disturb us. Full stop, but not. अब कुछ लाइटिंग हो सकती है आपकी तरफ आप सर, प्रॉपर मैं घर पे नहीं हूँ सर, अभी मैं बाहर हूँ, होटल में हूँ। सर, दिस इज ऑल आई कैन प्रोवाइड। ठीक है कोई बात नहीं आप कहाँ से हैं अब आप सर, मैं दरभंगा से हूँ। इट्स अ सिटी इन बिहार। बिहार जुडिशरी दिया था आपने इससे पहले जी सर, दिया था। तो अब फिर यूपी बिहार में नहीं हुआ आपका सर, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है प्री का। अभी बस प्री का एग्जाम हुआ है। तो फिर जैसे प्री रहेगा हम यहाँ आप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद प्री का रिजल्ट आता है मेंस का रिजल्ट आता है होम स्टेट रहेगा इजी रहेगा कन्वीनियंट जॉब रहेगी घर के पास रहेगी Sir, all these things doesn't matter to me. Right from the beginning, sir, uh, class 10 मैं घर से बाहर रही। So, You are घर से not बाहर is not an issue. And once I am being selected, if I am being selected to UP Judicial Services, sir, I'll be solemnly committed to it, and I'm joining any other Abhay, your state. So. video has stuck. वीडियो Hello? रुक गई थी आपकी अभी ठीक है सर मैंने डेट तो हाँ सर। Okay. Can you repeat your answer? हेलो हेलो हाँ आभा can you repeat your answer बेटा सर मैं बोल रही थी सर आफ्टर माय क्लास 10th आफ्टर कंप्लीटिंग माय हाई स्कूल I have stayed away from home for my intermediate and for my college. Sir, to leaving home is not an issue for me. And once, if I'm able to join the UP Judicial Services, sir, I'll be solemnly committed to it, and I won't be joining any other state, be it Bihar or any घर state. के पास रहेगा तो जॉब कन्वीनियंट तो रहेगी ना प्री का रिजल्ट तो अभी भी आपका वेटेड है जी सर। सर अगर घर से दूर रहने की बात है सर तो मुझे लगता है यूपी इट्स अ नेबरिंग स्टेट और यूपी भी ज्यादा दूर नहीं पड़ेगा मेरे घर से। ऑल्दो दीज द डिस्टेंस डजंट मैटर सर। ठीक है अच्छा आप मुझे बता पाएंगे आभा कि हॉस्टाइल विटनेस की एविडेंटरी वैल्यू क्या होती है सर हॉस्टाइल विटनेस सर इट्स नॉट अ very strong piece of evidence. The Supreme Court from time to time has given guidelines that while taking the evidence of hostile witness, the the judge should be conscious of the fact that that the person has already turned hostile one time, and it might change the statement in the future. And also, sir, as he has been tendered a pardon under 306 of the CRPC, he might use all the statement against the other person and for the benefit of himself. So the question of integrity of the hostile witness is also there. That's why, sir, it's not a very strong piece of evidence. ठीक है आप बता सकते हो कि एक्यूज्ड की ऑफेंस में ट्रायल हो सकता है जी कि सर। उसकी जिस में ट्रायल हो सकता है सर पार्डन सर।
क्या एक्यूज्ड की एब्सेंस में उसके अगेंस्ट ट्रायल हो सकता है? Yes, sir. In absence of accused, trial हो सकता है under section 299 of IPC, CRPC, sir. Trial हो सकता है. When accused is absent, sir, the court may invoke the doctrine of necessity. For example, sir, terrorist activities जब होती हैं, बॉम्ब से बहुत लोग मरते हैं, तो सर अक्यूज माइट गेट किल्ड और वो भाग चुका हो. इन सच केसेस, सर, वी सी दैट section 299 of the CRPC is used. अब आप मुझे बता पाओगे कि विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन और विड्रॉल बाय हाई कोर्ट ऑफ केस दोनों में क्या डिफरेंस होता है? Sir, withdrawal of the case by prosecution is done under section 321 of the CRPC. Sir, if the prosecution withdraws the cases, then, sir, it might another case cannot be filed again. Sir, it result in either a discharge or acquittal, but under withdrawal by the High Court, sir, if the High Court thinks that a case can be tried after some time in future, it can be done. अब आप मुझे बताओ, आप जो है किसी यूपी की किसी डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट किए जाते हो, आपकी जॉब पोस्टिंग मिलती है आपको, आपके फादर वहाँ एक लैंड परचेज करते हैं और उस पर कोई एडवर्स पोजीशन ले लेता है और केस आपके सामने आता है, व्हाट विल यू डू? Sir, as a judge. Thus, under section 136 of the Indian Evidence Act, a judge has to decide the admissibility of the evidence that has been presented to him. Sir, if my father's appears as a evidence, or if my father is related to the cases anyway, I can refuse to take that evidence, or I can refuse to take that case. And so there's a principle that justice should not only be done, but it should be seen to be done. अब आपने एलएलएम भी किया है, जी सर. डिसर्टेशन का क्या टॉपिक था आपका? My dissertation topic was limitation on freedom of speech in line with penal laws. Come again? Sir, limitation on freedom of speech in line with penal laws. आप मुझे बता सकते हो कि सेडिशन का लॉ जो है वो आईपीसी में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और रीसेंट जजमेंट उस पे क्या कहता है? Sir, as far as my limited knowledge is concerned, reasonable restrictions as in form of sedition can be taken as offense, should be there, but the terms used in the sedition law right now that we have, the term disaffection, the punishment, the wide ambit of punishment in the sedition law, that need to be reconsidered, sir. And the interpretation. Judgment. Can you name the judgment of recent Supreme Court judgment? Yes, sir. Honorable Chief Justice N.B. Ramana in S.G. Vomtre. Sir, I'm sorry, sir. I'm not able to pronounce the name correctly. S.G. Vomtre versus Union of India. It's a 2023 judgment. And Honorable Chief Justice, the then Chief Justice N.B. Ramana had given this judgment. बुलडोजर जस्टिस के बारे में आपका क्या कहना है? Sorry, sir, I won't be able to provide an answer on this. आपको ऐसा नहीं लगता कि जो मॉब लिंचिंग का ऑफेंस है वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट किया जा रहा है? Sir, as far as
I know, sir, mob lynching can be done against any community, and it has been done not only against minorities but also against the major communities that I have seen, sir. अब आपको ऐसा नहीं लगता कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसका पर्पस जो है मुस्लिम लॉ को डाइल्यूट करना है? Sir, I believe that the main purpose and objective of UCC is to provide equal justice to all, particularly women of the community, because in India, mostly we see patriarchy is prevailing. That's equal law and justice, equal rules and procedure for women of each community. UCC is indeed a need, so right now. अच्छा, आपको नहीं लगता कि जो वुमेन है वो अपने फेवरिंग प्रोविजंस को अगेंस्ट मेन मिसयूज कर रही है? No, sir, I don't believe in this, that women are misusing it. In various instances, we have seen that it has been misused, but the main purpose and objective of these laws was to provide strengthening power to the women, sir. And I think institutional reform is more important in order to make this law more fruitful, sir. आपको ऐसा नहीं लगता कि पर्दा सिस्टम जो है मुस्लिम लॉ में जी. ये जो है वुमेन के साथ इनइक्वालिटी है? Sir, there is also a right to choice of a woman, of right to choice of wearing an apparel or the kind of clothes they want to wear. So I think so. Right of choice is also there, and if a woman want to put a burqa or a hijab or any kind of parda, it's her choice. So, Can you quote the recent judgment over it? sir, it was a 5-judge bench of Supreme Court. Right now, sir, I'm unable to recall it. So Safiq something versus Union of India was there. I'm sorry, sir, I'm unable to. Sir, Pardon, sir? अच्छा अब ये बताओ, एक सिचुएशन की बात करते हैं हम लोग। अगर जी. मान लीजिए ए ने बी का मर्डर किया है, ठीक है? Pardon, sir? ऑडिबल है? हाँ सर, बस वो नेटवर्क इशू हो रही है थोड़ी सी. ओके। हाँ. अच्छा मान लीजिए ए ने बी का मर्डर किया, जी. ठीक है? सी पर्सन आई विटनेस था और हम्म. सी ने डी को ये स्टोरी बताई। डी पर्सन कोर्ट जाता है और वो बोलता है कि सी पर्सन ने मुझे बताया कि ए ने बी का मर्डर किया। अब ये स्टेटमेंट कैसी होगी? Sir, it will be an hearsay evidence, and it is Sure. not a relevant piece of evidence. Yes, sir. अच्छा, मैं इसको थोड़ा इजी करता हूँ आपके लिए, ठीक है? डी ने 2 स्टेटमेंट बोली। पहली बोली उसने कि सी ने बोला है कि ए ने बी का मर्डर किया है, ठीक है? हम्म. और दूसरी स्टेटमेंट बोली है मान लीजिए डी पर्सन ने कि ए ने बी का मर्डर किया है। अब इन दोनों को डिफरेंशिएट कीजिए। सर, अब पहला स्टेटमेंट उसने बोला है कि ए ने बी का मर्डर किया है। पहले स्टेटमेंट बोला है कि सी ने मुझे बताया कि ए ने बी का मर्डर किया है, यस सर। ठीक है? और दूसरा स्टेटमेंट है डायरेक्टली उसने बोला कि ए ने बी का मर्डर किया है। अब क्या ये दोनों स्टेटमेंट हेयरसे एविडेंस हैं, क्या है बताइए? सर, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एन hearsay evidence, while the second statement is not an hearsay evidence. श्योर है इसके बारे में? Yes sir. ओके। अच्छा, रिसेंटली अभी आप देख रहे होंगे पार्लियामेंट में चर्चा चल रही थी, कौन से मोशन की बात कर रहे थे? क्या वो कॉन्फिडेंस मोशन कौन सा था वो?
Sir, it was regarding no confidence motion. तो क्या होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन? Sir, it's in a democratic country, we see the exercise of showing the confidence in the House of People through this motion, no confidence motion, under Section 198 of the Rules and Procedures of the Lok Sabha. This particular motion has been dealt with, under which if the opposition has the support of 50 or more members of parliament, support of 50 plus more members of the parliament, then a motion can be presented that the present government is not working according to the constitution, or there might be other grounds, and it can be introduced in the Lok Sabha. It can be introduced in the Lok Sabha. It can be only introduced in Lok Sabha, and Article 75 of the Constitution. The Council of Ministers should have the uh, faith of the support of the Lok Sabha. That's why if a no confidence motion is passed, the government has to go down, and if it's not passed, then government enjoy the support of the House of People. अच्छा, अभी आपने वर्ड यूज किया फेथ, Yes, sir. क्या रेफरेंस है इसका? क्या इसका रेफरेंस सही है, फेथ है या कॉन्फिडेंस है? Sir, faith won't be the correct word here. It will be confidence. अच्छा, दया भागा स्कूल और मिताक्षरा स्कूल में क्या डिफरेंस है? Sir, मिताक्षरा स्कूल सर ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया प्रिवेल करता है सर. दया भाग जो है वो पर्टिकुलरली आसाम और वेस्ट बंगाल में ये लॉ फॉलो होता है. ये स्कूल हिंदू लॉ का. और सर जो दया भाग स्कूल है इसमें राइट टू आस्क फॉर पार्टीशन इज नॉट देयर with the co-partner, while in Mitakshara, right to ask for partition is there. Right to ask for partition is available with the Karta, sir. अच्छा, सेक्शन Sorry, 6 sir. The ओके, co-partner, sir. जो है आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट का, जिसमें नोशन पार्टीशन की बात की गई है, जिसमें हम लोग जी सर. डॉटर को कोपार्टनरी का राइट दिया गया है, तो ये कौन से स्कूल पे एप्लीकेबल होता है? Sir, it is applicable to all the schools. श्योर है आप? Yes, sir. अच्छा, ये बताइए, मान लीजिए पुलिस ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर नहीं करते हैं, तो क्या रेमेडीज आपके पास हैं? Sir, there are sir. First remedy is that one can go to Superintendent of Police under Section 154 Clause 3. And sir, another remedy is that one can go to magistrate under Section 156, and then the magistrate can order the police to investigate, or sorry sir, not to investigate, to register the FIR. तो सेक्शन 36 का यहाँ पे यूज नहीं है कहीं? आपने Sir, रेफर किया Section शायद 1 30 सेक्शन 54. sir, Section 36, sir, it's regarding the power of police. Sir, मैं अभी याद नहीं कर पा रही, not able to. ओके. अच्छा, मान लीजिए हम यूसीसी की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जो कि डिमांड में आजकल आप देख रहे होंगे, लेकिन इसको छोड़ के अगर ये मैं पूछूं आपसे कि कौन से वो 2 डीपीएसपी होंगे जिसको आप फंडामेंटल राइट बनाना चाहेंगे? सर, बहुत सारे डीपीएसपी ऑलरेडी उनको फंडामेंटल राइट्स का रिकग्निशन मिल चुका है थ्रू जजमेंट, नॉट इन एक्सप्लिसिट मैनर. बट सर, राइट टू वर्क को एक फंडामेंटल राइट बनाया जा सकता है. और सर, राइट टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट, जो फॉरेस्ट और प्रोटेक्शन की बात की जाती है आर्टिकल 48 के अंदर सर, मुझे लगता है उसको भी बनाया जाना चाहिए. बिकॉज इन द करेंट सिनारियो वी सी राइट नाउ द
So the environmental condition has really degraded. That's why it should be made into a constitutional explicit or constitutional safeguard. ओके। अच्छा, मान लीजिए कोई पार्टी है जो आगरा से केस ट्रांसफर पटना कराना चाहती है सिविल केस में, तो वो जी। कौन सी कोर्ट में अप्रोच करेगी? सर वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेगी। सर सर एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? श्योर श्योर। सर एकदम सर ये क्रिमिनल या सॉरी सिविल सर सिविल केस। सर ये सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। द पार्टी कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड आस्क टू ट्रांसफर द केस। ओके, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट सुमोटो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता इस चीज का? सर ले सकती है। श्योर है आप? Sir, in civil cases, I am not sure. In criminal cases, no, sorry, sir. In criminal cases too, application is important. I'm sorry, sir, I'm unable to recall. ओके। अच्छा, मान लीजिए आप आगरा की सीजेएम है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और आपके पास एंटीसिपेटरी बेल के लिए मैटर आता है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस के रिगार्डिंग है, तो क्या लगता है बेल आप किन मैटर्स मतलब किन फैक्टर्स को डिसाइड करके देंगे? सर पहले ये नॉन बेलेबल ऑफेंस था, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के अकॉर्डिंग बेल दिया जा सकता है और कुछ ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं जिसके बेसिस पे दिया जा सकता है। सर जो डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं, जैसे वुमेन है कोई, तो उनको बेल दिया जाएगा। आप शायद क्वेश्चन समझे नहीं। मैंने कहा कि सीजेएम है, आपके पास एप्लीकेशन आ चुकी है, तो क्या करेंगे उसको डिसाइड करने के लिए? एंटीसिपेटरी बेल के लिए? Oh, sorry, sir. Sir, I don't have the power to grant anticipatory bail. ओके। But अच्छा, I'm आपकी कोई sorry. हॉबीज भी हैं? Sir, I paint किस टाइप की and painting? sometimes I read. Sir, oil paint करती हूँ, pencil colors भी करती हूँ, और sir mostly oil and water colors. अच्छा, कोई फेमस पेंटर बता सकते हैं 2 लोगों के नाम? Sir, M.F. Hussain is there, Raja Ravi Verma. तो मैं हुसैन जो किस पर्टिकुलर पेंटिंग के लिए फेमस है? सर उन्होंने एक हिंदू गॉडेस की एक पेंटिंग बनाई थी एंड दैट वाज नूड, और उनके लिए उनको बहुत बैकलैश झेलना पड़ा था, और करेंटली इज नॉट एन इंडियन सिटीजन। उनके कारण उन्होंने मतलब सिटीजनशिप उन्होंने फोगो की और ही इज लिविंग इन अनदर कंट्री। ये तो किस टाइप की पेंटिंग्स के लिए फेमस थे मैंने पूछा आपसे, आप क्रिटिसिज्म बता रही हैं। सर एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स एंड इतना ही पता है। ठीक है, आपका इंटरव्यू ओवर हो चुका है। आपके अकॉर्डिंग कैसा लगा आपको? क्या कमियां थी? हाँ सर, क्वेश्चंस और ध्यान से सुनने चाहिए और आंसर्स थोड़े शॉर्ट रखने चाहिए, और सर आप बता दीजिए। नहीं, हम पहले पूछ रहे हैं उसके बताएं, हम तो बताने के लिए बैठे हैं, वो किस बात है। सर देखिए इतना सर, पता चल पाया। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, बेसिक्स जो थे उस पर वर्क करने की जरूरत है आपको, पहली बात। ठीक है, डर बहुत लग रहा था, एक्सप्रेशन से दिख रहा था कि डर बहुत डर है। जो क्वेश्चंस आप और बता सकते थे जिसमें आंसर्स और आराम से, उसमें भी आप बिल्कुल लैग कर गए कि बस चुप हो जाऊं मैं 2 लाइन बोल के। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, अभी एग्जांपल दूंगा मैं आपको। ठीक है, गेस्चर आपका ठीक नहीं था, वॉइस लो हो जा रही थी बिल्कुल बीच बीच में। ठीक है, ऐसा लग रहा था बीच में कि मतलब आप फ्रेंडली वे में बात करना चाहते हैं। ठीक है, उस चीज़ को थोड़ा सा इम्प्रूव कीजिए। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका कि आप सर्विस ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। ठीक है, बिहार से आप यूपी क्यों आना चाहते हो, ये बहुत क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक वो पॉजिटिवनेस नहीं दिखी आपके में कि मैं थोड़ा एक्साइटेड रहूं कि भाई ठीक है मैं ठीक है। आप बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बस आप फॉर्मेलिटी के लिए उस चीज को जवाब दे रहे हो आप, कि 2 लाइन का बोल दिया चुप हो गए। ठीक है, हॉस्टाइल विटनेस से क्वेश्चन पूछा था सर ने आपसे, उसमें आपने प्रोविजंस मिस कर दिए। वह सेक्शन आपने 154 मेंशन ही नहीं किया। जब हॉस्टाइल विटनेस वर्ड बोला जाए तो सबसे पहले आपको सेक्शन प्रोविजन बतानी चाहिए। ठीक है, अपना आंसर अपने आप ही छोटा कर दे रहे हो, आपकी प्रोविजन बता ही नहीं रहे हो। ठीक है, बुलडोजर जस्टिस वाला क्वेश्चन पूछा गया आपसे। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस पे आप बिल्कुल चुप नहीं हो सकते हैं। ठीक है,
आपको न्यूट्रल वे, जो भी आपको ओपिनियन है वो देना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आप नो बोल रहे हो तो क्यों नो बोल रहे हो, यस बोल रहे हो तो क्यों यस बोल रहे हो। आप बिल्कुल साइलेंट हो गए बुल जोड़ो जस्टिस पे, ठीक है। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन जितने भी थे आपके, उसमें आप बिल्कुल साइलेंट हो गए। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पे आपको, हॉबीज पे आपको वर्क करना पड़ेगा कि पेंटिंग अगर बोल रहे हो तो आपको पेंटिंग से क्वेश्चन बनेंगे। ऐसा आप ये नहीं सोच सकते कि कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, प्लस आपसे पूछा जाए कि क्यों फेमस थे, किस पर्टिकुलर आर्ट के लिए फेमस थे, तो उसको बताना चाहिए था आपको। आप उनका क्रिटिसिज्म बता रहे हो, ठीक है, उस चीज को मत बताइए। फिर एफआईआर वाला क्वेश्चन था, उसमें आपने लैग किया चीजें, प्रोविजंस आप शायद डायरेक्टली 154 चले गए, 36 आप रेफरेंस नहीं बता पाए। ट्रांसफर ऑफ केसेस की बात करते हैं सिविल केसेस में, ठीक है, उस पे आप अटक गए। ये सुप्रीम कोर्ट के पास सिविल केसेस में एप्लीकेशन के बेसिस पे होती है, तो नहीं होता कॉग्निजेंस, ठीक। क्रिमिनल केसेस में सुमोटो भी ले सकते हैं, ठीक है। जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा ए एंड बी वाला, जो मर्डर वाला केस पूछा हमने आपसे, ठीक है, उसमें भी आप लैग कर गए, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोविजन है, इसमें बेसिक्स पे काम करने की जरूरत है, और जो भी आपको फेवरेट लग रहा है कि सब्जेक्ट मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट है, उस पे आप अच्छे से बेसिक्स क्लियर करो, और थोड़ा सा टाइम ले लो। अगर आपको 2 क्वेश्चन पता है या नहीं पता है, तीसरा क्वेश्चन आपको लग रहा है कि अच्छा मुझे ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो उसमें टाइम ले लो, आराम से टाइम लेके बताओ। जैसे आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात की, ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम लेके बता दिया वो चीज। तो बीच में टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे, तीसरा मुझे आ रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में बताना है, आराम से सोचो कि अच्छा उसका कोई सेक्शन मुझे याद आ रहा है एग्जैक्टली, तो सेक्शन से स्टार्ट कर दो उस चीज को, ठीक है। टाइम लो आराम से, ठीक है। रुकना नहीं है कि 2 लाइन बोल दिया, 1 लाइन बोल दिया, अपने आप रुक गए, ठीक है। बोर्ड को रोकने दो अपने आप को, ठीक है, बोर्ड को इंटरफेयर करने दो, ठीक है, ठीक है, बात ठीक है सर। अब एक तो पहली बात, क्वेश्चन को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। क्वेश्चन कुछ और है, आंसर किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, और आपको ऐसा लगता है जब आंसर गलत जा रहा है तो आप उसे बीच में करेक्ट करने की कोशिश करें। जैसा कि वो लैंड वाले केस में हुआ, फादर ने लैंड परचेज़ की। आप पहले ट्रायल की तरफ बढ़े थे, फिर बाद में आपको मैक्सिम याद आई और आपने अपने आप को उस आंसर को करेक्ट करने की कोशिश की, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन पे वर्कआउट करो, एक जैसी वॉइस रहनी चाहिए। आपको अपने सिटिंग पोस्चर पे भी काम करने की ज़रूरत है। टिल रहते स्टार्टिंग में, जब तक आपने मोबाइल पास में नहीं रखा था। बहुत हल्का मूवमेंट था, बट था। इसके बाद चीज़ों को अपने लेवल पर प्रेज़ेंट कर रहे हो। मैंने मॉब लिंचिंग का क्वेश्चन पूछा था अगेंस्ट वन कम्युनिटी। आप उसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को लेकर आए। आप अपने लिए क्वेश्चंस और इनवाइट कर रहे हो। आप ट्रैप में फँस रहे हो, ठीक है? ट्रैप में नहीं फँसना है हमें। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पे रेशनली आंसर देना है, ठीक है? जैसा कि आप फीमेल फेवरिंग प्रोविजन पर आंसर दे रहे थे, सही आंसर था, पर बाद में बहुत सेटल्ड तरीके से आपने क्लोज नहीं किया उसे, ठीक है? एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक तो रीसेंट जजमेंट को पढ़ लो, ठीक है? रीसेंट जजमेंट पे वर्कआउट करो। इसके अलावा सोच रहे हो बिना टाइम माँगे, कम से कम अगर सोचना है तो पूछ लो कि सर मे आई टेक फ्यू सेकंड्स, मे आई टेक 10 सेकंड, 5 सेकंड, कि आप अपनी चीज़ों को रिकलेक्ट करके आंसर दो। आप सोचने में चले गए, बट पूछा नहीं आपने इंटरव्यूअर से। हो सकता है वो आपका उस आंसर को सुने और उसके बाद इंटरव्यू खत्म कर दे, ठीक है? इसलिए अगर सोचना है तो टाइम ले लो, बिना पूछे टाइम नहीं कर ले। अगर क्वेश्चन गलत आता है, उसे अटेम्प्ट करना चाहती हो, तो उसके लिए भी पूछो कि सर आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मे आई ट्राई? अगर वो आपको लिबर्टी देते हैं, तब उस केस में उसका आंसर करो, वरना उसे स्किप कर दो। आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, चाहे गलत है या सही है। अगर आप डाउटफुल हो तो परमिशन लो, सोच रहे हो तो परमिशन लो। एंगेजमेंट इंटरव्यूअर का आपकी तरफ बना रहता है। रीसेंट जजमेंट को पढ़ो, बॉडी की मूवमेंट पे काम करो, ठीक है? और ये जो स्पेक्स संभालते हो, थोड़ा सा आराम से, ध्यान से, ये ऐसे करके बार बार नहीं करने की जरूरत होती है, ठीक है? ठीक, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। Thank you, sir.